Welcome to Enlightened Education Videos. My name is Ankit Patel and here we are going to study about Ammonotelism, Ureotelism and Uricotelism, right? This is actually classification of different kind of excretion on the basis of what kind of nitrogenous waste is being eliminated out from the body, right? So we will study about this topic in this video, but before we go to this topic, let's discuss answer of the question that was asked in previous video of standard 12, that is of the same chapter, right? So let's see the first question. First question is of Y type. That means you have to give reason for the statement given to you. Statement was like there are some animals like amphibians, hagfish, marine invertebrates. These animals are having their body fluid isotonic to sea water or saline water. Why? And the answer is simply they are osmoconformers, right? They are not regulating their osmolality of their body fluids. They just change their osmolality, body fluids osmolality with the osmolality of their surrounding, right? So they are not, they are just osmoconformers. That is the answer. That's why their body fluid is remaining isotonic to the surrounding water. Now let's move to the second question. What is osmolality of human blood? It is simply 300 milliosmol per liter. Let's move to the third question. Third question is, there are some animals here. One statement is given to you that there are some animals like sharks and coelacanths. These animals are having their body fluid hypertonic, not hypotonic, not isotonic, but hypertonic to seawater, right? And how they are able to achieve this? That is also because they are having osmolytes. But what are those osmolytes, right? We have to identify osmolytes from the given three options, that is ammonia, urea, or trimethylamine oxide. The right answer here, actually two right answers were there. One is urea. Urea also acts as osmolytes. And second is trimethylamine oxide, TMAO, right? So here two answers are correct answers. So here are the answers of three questions that has been asked to you. Now let's move to our topic, today's topic, that is Ammonotelism, Ureotelism or Uricotelism. Let's study about Ammonotelism. Ammonotelism is a kind of excretion in which ammonia is being excreted out, and ammonia is highly toxic chemical. So to excrete out this ammonia, huge amount of water is also eliminating out from the body. And as it is highly soluble in water, it does not comes out through kidney. Means kidney does not have any major role in excreting out this chemical called ammonia, but it comes out through gill surface, right? Because it is highly soluble in water. Now, those animals which are doing this ammonotelism are called ammonotelic organism. Now, what are the examples of ammonotelic organisms? So some bony fishes, aquatic insects, aquatic amphibians, amoeba, hydra, sponges, crayfish, then comes tadpole larva of frog. तो ये सारे organisms आते हैं ammonotelic organisms में. अब ureotelism देख लेते हैं. Ureotelism is a kind of excretion wherein urea is being excreted out. Urea is very much less toxic than the ammonia, almost 100,000 times lesser toxic than ammonia, and it is lesser soluble in water. So while excreting out urea, that much amount of water is not excreted out. जितना ammonia के साथ पानी निकल जाता था, उतना पानी urea के साथ नहीं निकलेगा. So this is actually excreting urea as nitrogenous waste is actually a terrestrial adaptation of certain organisms to conserve water in their body. Not only ureotelism, but इसमें ये terrestrial adaptation में सिर्फ यूरियोटेलिज्म नहीं आता है, यूरिकोटेलिज्म में भी आता है, wherein some ATP molecules are used to convert ammonia into urea, and this urea is being excreted out. अब ये यूरिया कैसे एक्सक्रीट होता है, हम लोग ने देख तो लिया कि अमोनिया बन गया यूरिया इन लीवर, but this urea is filtered out from the blood in kidney. In kidney it is filtered out, it is separated out from the blood, and then this urea is being eliminated out of our body. Some amount of urea is stored within the kidney, is retained within the kidney. Stored तो नहीं बोलेंगे, but retained within the kidney. Why? Because okay, चलो ये question मैं रख देता हूँ कि why certain amount of urea is been retained in the kidney. Examples of ureotelic organisms are
They are marine fishes, they are mammals, including us, right? And they are terrestrial amphibians also. So this kind of organisms are called ureotelic organisms. तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि भाई यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग यूरिया इन देयर बॉडी. लेकिन जो सबसे पहला नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, आई मीन द केमिकल फॉर्म इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अमोनिया. तो सबसे पहले जो बनता है वो अमोनिया ही बनता है. ये अमोनिया किसमें से बनता है? बाय डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट. अंडरस्टूड? और ये ग्लूटामेट और बाकी सारे अमीनो एसिड्स में क्या नहीं होता है? ये सब तो बाकी सारे अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन नहीं होता है, बट बाकी सारे जो अमीनो एसिड्स है दे कैन गेट ट्रांस एमिनेट. उनका ट्रांस एमिनेशन होके वो ग्लूटामेट बन सकते हैं, एंड दिस ग्लूटामेट कैन अंडरगो डीएमिनेशन प्रोसेस and getting converted into alpha ketogluteric acid and ammonia. This ammonia can get converted into ammonium ion by taking H plus ion from the water, right? So ammonium ion बन गया यहाँ पर, तो एक अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बन गया और अमोनियम आयन बन गया. ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड वो ही कंपाउंड है जो क्रेब्स साइकिल में भी बनता है. इट इज द ओनली 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन द क्रेब्स साइकिल, है ना? वही अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड यहाँ पर है और उसके साथ साथ एक अमोनिया प्रोड्यूस हो गया, एंड दैट अमोनिया गॉट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन. नाउ दिस अमोनियम आयन विल रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन. अब बाइकार्बोनेट आयन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दोनों हम लोग और में ले रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में डिसॉल्व इन वाटर इट गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड, और यही कार्बोनिक एसिड वाटर में H प्लस डोनेट करके बन जाता है बाइकार्बोनेट आयन. Right, so more specifically it is bicarbonate ion, and here 2 molecules of ATP is also used in this process, right? Wherein ammonium ion is reacting with bicarbonate ion, and due to this reaction carbamoyl phosphate is producing. It is a very simple compound, C double bond O. At one side amine group is there, and at another side phosphate group is there, right? So carbamoyl phosphate, and also the ADP is producing over here with 1 inorganic phosphate, 2 ADP and 1 inorganic phosphate, because एक inorganic phosphate तो कार्बामोइल के साथ आ गया ना, कार्बामोइल phosphate बनाना यहाँ पर, right? And the enzyme which is used over here, the enzyme which is employed over here is carbamoyl phosphate synthase 1. कार्बामोइल phosphate synthase 1. राइट, तो यहाँ पर बन गया कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस. अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट है ना, बहुत नखरे वाला है, इसको बाहर जाना ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ, ये आपको बताना मैं भूल गया कि भाई ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. राइट, फ्रॉम दी अमोनियम आयन, राइट, फ्रॉम दी अमोनियम आयन टिल दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस. ये पूरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट को बाहर नहीं आना, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस नहीं, कार्बामोइल फॉस्फेट. नाउ इट डजंट वांट टू कम आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब इसको करेंगे क्या? क्योंकि अमाइन ग्रुप ग्लूटामेट से अलग हुआ था, अमोनियम आयन बन गया था, अब वो कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ है, वहां पर भी एक अमाइन फॉर्म में है. नाउ इट हैज टू कम आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. तो हमारा यहाँ पर एक हीरो को भेजना पड़ेगा, एंड दैट हीरो इज ऑर्निथिन ओवर हियर. राइट, वो हीरो कौन है? ऑर्निथिन है. तो ornithine from cytosol it is entering within the mitochondria, it is reacting with carbamoyl phosphate, and वो रिएक्शन में एंजाइम भी जो एम्प्लॉयड हुआ है वो है ornithine transcarbamylase, ornithine transcarbamylase. And by the reaction of ornithine and carbamoyl phosphate here citrulline is produced. क्या बन रहा है यहाँ पर? citrulline. अब ये citrulline जो बना ना वो बहुत बेचारा भोला भाला सीधा साधा एकदम है. ठीक है, तो ये बेचारा एकदम माइटोकॉन्ड्रिया से फटाक से बाहर आ जाएगा. नाउ दिस सिट्रुलिन, भोले भले लोग की ना ज्यादा एक्सपायरी डेट होती नहीं, तो ये दिस सिट्रुलिन गेट कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिनोसक्सिनेट. लेकिन कैसे? ये सिट्रुलिन का रिएक्शन हो जाता है एस्पार्टेट से. किसके साथ रिएक्शन हो जाता है? एस्पार्टेट. सी, वन मोर अमीनो एसिड इज कमिंग ओवर हियर. तो ये एस्पार्टेट भी एक अमाइन ग्रुप लेके आता है. ठीक है, अब ये एस्पार्टेट भी कैसे बनता है? तो एस्पार्टेट इज फॉर्मिंग थ्रू ट्रांस एमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट. लो बोलो, तो ग्लूटामेट 2 जगह पर यूज हुआ, एक यहां पर और एक एकदम सबसे पहले वाला रिएक्शन में, जहां पर ग्लूटामेट का डीएमिनेशन होकर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना था. और यहां पर भी यूज हो रहा है कि ग्लूटामेट यहां पर उसका ट्रांस एमिनेशन होकर एस्पार्टेट बनता है. अब एक ग्लूटामेट भी कैसे बनता है? उसका भी किसी ना किसी और एमिनो एसिड का ट्रांस एमिनेशन से बन जाता है.
अंडरस्टूड। तो यहाँ पर बन गया एस्पार्टेट, एस्पार्टेट इज रिएक्टिंग विद सिट्रुलिन, सिट्रुलिन एंड एस्पार्टेट आर रिएक्टिंग विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एंड द एंजाइम argininosuccinate synthetase, argininosuccinate synthetase. With the help of this enzyme argininosuccinate will produce, और यहाँ पर जो एटीपी का यूज हुआ है भाई साहब एकदम खतरनाक तरीके से यूज हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि ये एटीपी से एडीपी नहीं बना, सीधा एएमपी बन गया। बेचारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन गया एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज्ड ओवर हियर इन दिस प्रोसेस, राइट। तो यहां पर बन गया argininosuccinate. Now this argininosuccinate will again converted into arginine with the removal of fumarate, मतलब ये succinate fumarate के फॉर्म में निकल जाएगा। ये succinate और fumarate भी Krebs साइकिल में था, है ना। तो this succinate argininosuccinate will get converted into arginine amino acid, और ये succinate जो है वो fumarate के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। And the enzyme which is used in this process is argininosuccinate lyase, क्योंकि यहाँ पर टूट रहा है, argininosuccinate यहाँ पर टूट रहा है ना। तो enzyme which is used over here is argininosuccinate lyase, ठीक है। तो बन गया arginine। अब ये arginine कन्वर्ट हो जाएगा वापस ऑर्निथिन में, ठीक है। अब ये कन्वर्जन में जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड arginase enzyme, दैट इज कॉल्ड arginase enzyme, ठीक है। अब ये तो देखो पूरा एक ऑर्निथिन वापस आ गया, अब ये ऑर्निथिन वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, है ना। तो पूरा एक साइकिल बन गया ना। अब ये भी साइकिल को, ये जो ऑर्निथिन से स्टार्ट हुआ था और वापस ऑर्निथिन पे आके खत्म हुआ, ये साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। और ये पूरा जो कार्बोमोल फॉस्फेट बना था अमोनियम आयन से और ऑर्निथिन साइकिल को, ये सबको मिक्स करें तो इसको बोलेंगे हम लोग यूरिया साइकिल, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सारा पूरा प्रोसेस हो गया, यहाँ पर यूरिया कहां बना है यहाँ पर, है ना। तो यूरिया इज फॉर्मिंग इन द लास्ट प्रोसेस जो हम लोग ने डिस्कस किया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ आर्जिनिन इनटू ऑर्निथिन। यही प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज्ड अप हो जाता है और बनता है यूरिया। नाउ दिस यूरिया इज हैविंग 2 अमाइन ग्रुप, यहां पर 2 अमाइन ग्रुप होते हैं। तो एक अमाइन ग्रुप कहां से आया था? एक अमाइन ग्रुप आया था ग्लूटामेट से, ठीक है ना। वो आगे जो ग्लूटामेट कन्वर्ट हुआ था ग्लूटामेट आई मीन अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड में और अमोनिया में। और दूसरा कहां से आया? एस्पार्टेट में, जो ग्लूटामेट से बना था और वो ग्लूटामेट कोई और अमीनो एसिड से बना था, इजंट इट। तो 2 अमाइन ग्रुप यहां पर निकल रहे हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। सो दिस इज हाउ यूरिया इज फॉर्मिंग इन द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, मींस हेपेटोसाइट, दैट इज लीवर सेल्स ऑफ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और फिर ये यूरिया ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर किडनी में जाएगा एंड किडनी में फिल्टर आउट हो जाएगा और बहुत सारा यूरिया हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएगा। आई मीन नॉट ओनली जस्ट ह्यूमन बट ऑल यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। Now let's study about Uricotelism also. Uricotelism is a process in which uric acid is eliminated out as nitrogenous waste. Uric acid is less toxic than ammonia and urea. It helps in conservation of water because it is insoluble in water, so it is pelleted out from the body, right? It is produced as pellet and is eliminating out in the form of pellet only. And it is consuming highest amount of ATP in compared to ammonia and urea. We have studied that in urea there is consumption of 2 molecules of ATP, right? और एक ATP का तो ऐसा यूज होता है जिसमें ADP प्रोड्यूस नहीं होता है, AMP प्रोड्यूस होता है। So ATP consumption is there in urea, uric acid में इससे भी ज्यादा है, right? अब this Uricotelism is actually an excellent adaptation for those animals which are laying shelled eggs. Why? क्योंकि जब ये एनिमल्स शेल्ड एग्स ले करते हैं तो उनमें अगर यूरिया और अमोनिया प्रोड्यूस हुआ एज एन एक्सिलरी सब्सटेंस, then this urea and ammonia cannot come out from their shells and they create toxicity within the developing embryo, right? तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि अगर ये यूरिया या अमोनिया यूरिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी प्रॉब्लम बिकॉज यूरिक एसिड बीइंग इनसॉल्युबल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इट विल रिमेन विद शेल ओनली, राइट? एंड इट विल नॉट क्रिएट एनी टॉक्सिसिटी टू द एम्ब्रियो। तो यहां पर यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन है। शेललेस एनिमल्स, आई मीन दोज एनिमल्स विच आर लेइंग शेललेस एग्स, उनमें तो अमोनिया और यूरिया ही होता है, उनके साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज
this urea and whatever ammonia or urea is forming within the egg, they can diffuse out from the egg very easily, right? अमोनिया या यूरिया जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो शेल नहीं है, तो यहाँ पर एग से बाहर एग मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूज आउट होना बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इवन इन मैमल्स, बिकॉज मैमल्स में अगर जो भी यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज दे आर यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर जो भी यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, दैट यूरिया कैन पास ऑन टू द मैटरनल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। सो हियर इवन देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पर यूरिकोटेलिज्म होने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस एनिमल्स आर इधर एमोनोटेलिज्म, मैं दोनों पे इंक्लूड कर रहा हूँ, द एनिमल्स विच आर लेइंग shellless eggs and placental mammals. So these animals are either ammonotelism or ureotelism. They don't have to uricotelism. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को प्रेस करना।